I think around 35 people are here. Thanks a lot. Just to share, Umair called me 15 minutes ago to make sure I was awake or not. And he asked me, if you're not awake, please get up because we have asked people to join the session. And I assured him that I am up and I am all set for the session. So I think so. I have also thought about these things. And I think it's a ज़्यादा जो what my issue is के few things जो हमें पता होने चाहिए फाइनेंशियल वेलनेस के लिए और आई लर्न देम लेट और कन्फ्रेंस में मैं अपने काफी सीनियर कॉलीग्स और उनसे जब बात करता हूँ तो आई सी द सेम इशू के दे हैव आल्सो नॉट लर्न दोस थिंग्स और दे शुड आई मीन तो फर्दर मूविंग ओके अच्छा जी तो अगेन एज आई वाज सेइंग कि फाइनेंशियली कोच्ड हम नहीं होते और जॉब में कुछ हैबिट भी ऐसी बन जाती है कि वी ट्राई टू लिव पे चेक टू पे चेक गिव मी सेकंड आई विल बी बैक सो वी कुछ हैबिट भी ऐसी जो है वो बन जाती है कि वी लिव पे चेक टू पे चेक और ऑफ्टन जॉब वाले लोगों में डिस्कशंस ऐसी हो रही होती हैं कि आपकी कितनी सैलरी होगी आपकी कितनी सैलरी होगी Joe, I guess it's natural, but I don't see them as a very positive discussions or very fruitful to have discussions. There's always somebody making a bit more, or paycheck should be one instrument to help you. I mean, there should be other options, other instruments to help you save a bit more, create more assets, and we're going to talk about them today. And again, I think some of us make common mistakes as well over last 10, 15 years. I've some make some financial mistakes and I see my colleagues, your colleagues make them every day. So I will try to share them as well. So maybe we can avoid those mistakes as well. Just gonna talk about four things. Being smart about our expenses, learning easy investment options, then some of the financial mistakes I made over the years or financial wellness beyond money. So if you are very rich today, then you should also stay in the call. I think all of us have young colleagues, young friends, young siblings or cousins, so we can always share this information with them as well. Actually, further. Acha, being smart about expenses. So starting with expenses, so not even about saving. I think expenses is an important thing, and as long as we do a good job in managing our expenses, we are doing the first thing right. और जो इन्वेस्ट और जो सेविंग्स और आपके जो एक्सपेंसेस के बारे में द गोल्डन रूल इज कि योर एक्सपेंसेस शुड बी एन आफ्टर थॉट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट और सेविंग फर्स्ट आपको जो वट एवर यू अर्न एवरी मंथ यू थिंक अबाउट कि मैंने इसमें से इन्वेस्ट कितना करना है और बाकी जो है वो आपके एक्सपेंसेस का साइकिल चलना चाहिए बिकॉज एक्सपेंसेस जो हैं वो लिमिटलेस होते हैं और अनफॉर्चुनेटली इन टूडेज वर्ल्ड वेयर थिंग्स आर गेटिंग expensive and we get so many options to buy stuff to spend on stuff people don't think about investment people generally think कि अच्छा से ये कितना खर्च हो गया है this much is left this ये मुझे कहीं सेव कर लेना चाहिए इन्वेस्ट कर लेना चाहिए जबकि ये जो रिवर्स होना चाहिए so that's the golden rule अच्छा कॉमन मिस्टेक्स इन मैनेजिंग एक्सपेंसेस फर्स्ट थिंग इज जो क्रेडिट के अंदर लोग इंडल्ज कर जाते हैं सो आई थिंक अप्लाइंग फॉर क्रेडिट कार्ड वेरी अर्ली इन योर करियर leasing cars, buying stuff on credit. I used to have a colleague, I won't name him, many, many years ago, and he told me at that point, I think was our colleague, the mutual colleague I'm talking about, उसकी salary तब कुछ 70,000 होती थी. It was many years ago. And he mentioned कि उसकी family दुबई गई और उन्होंने वहाँ पे उसके credit card के ऊपर हैंड बैग ले लिए और शूज ले लिए और ये ले लिया वो ले लिया कुछ 2-3 लाख रुपए की शॉपिंग कराए हैं एंड फॉर द लास्ट ईयर ये उसकी किस्तें और इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है आई थिंक दैट्स इंसैनिटी के you have a credit card and either you or somebody very close to you is using that to buy stuff that you can live easily without and early in your career you're putting so much debt on you and also credit payments if you're late they have more charges on them so you get stuck in a cycle and sometimes people pay for years and again luxury cars I mean, if you cannot afford like a big sedan or a Jeep, don't get that leased or anything. I mean, again, if after investment your salary allows you to lease large, big cars, please go for it. But I should not. And final point is actually contrary to all that. I think fear should not be a factor as well, or just saving everything or investing everything is a bad approach as well. It's important to live life
and the time never comes back. The age that goes away never comes back, or it's important to live a little. Basic of investment. So again, all of this is for a salaried person, and I'm not going to talk about like big investments and all of those things. Or I think Mark. So I'm a big fan of Mark Cuban. If anybody of you watches Shark Tank or our journal follow like investors and successful entrepreneurs. So Mark Cuban always say that anybody planning to live life on monthly salary is a fool. You should always look to create assets, whether it's company stock, whether it's like real estate, whether it's a fund. So you should create assets over time that will generate money as well. Three assets we're going to talk briefly about. So one very briefly and two a bit more detail. So stock market, mutual funds, or company stocks. Let's talk about stock markets. So stock market may, if you or me, if you want to trade in stock market, which means we want to buy and sell stock, it's not too complicated. You can create open a trading account. It's actually you can even create that online or WhatsApp with a company like AKD Trading or anything. So these companies help you open an account, and then you can, using their services, buy and sell stocks, and they keep a share out of it. But what I've learned that opening account is easy, but trading is not, because stock market is a thing in itself, and it's not easy to understand. And generally, in my family, in my friends, people who have invested in long term, people who understand companies, their business, and they look at performance of many years, there are many indicators they have done well. And any of you have indulged into it or plan to indulge into it by selling and buying stock directly, then you should keep in mind that day trading, just following the rat race or somebody's advice blindly is not the way to go. I mean, it's a long-term thing. You should try to understand companies by reading financial statements. And again, those things are not straightforward. Acha ji, going a bit further, something I like and something I do apply myself, which is mutual funds. So mutual funds give you a platform. They give you a platform where small and big investor, and by small, I mean really small. You can start investing in mutual funds by just 5,000 Pakistani rupees in Pakistan. And I was reading about US, you have similar options as well. You with just a few $100s, you can start investing in mutual funds. So mutual funds take all kind of large investors or small investors. You can invest hundreds of thousands, or you can just start investing 5,000. They create pools of money. They get this money from small investors like you and me, and big investors as well. They have teams of fund managers. Fund managers are people who understand investments, who understand stock market as well. So, so these fund managers, they get investment from hundreds of thousands of people. So generally a fund has a large number of investors that we don't know. It's just we know our investment, but these mutual funds, they create pools of money. They put fund managers on top of that, the guys who know investment, and they invest on various things, whether it's construction of real estate, especially commercial one, whether it's new factories opening up, whether it's new businesses, or it's stock market. So they invest your money with various level of risks. They make a reward, and they give you a return back in a proportion to the money you have invested in them. But keep in mind the charge for every transaction. So whenever you buy mutual funds or invest in mutual funds, they charge a money which they call front end loads. And whatever the profit you get, they keep a share and the return. So what's happening is, if stock market में अगर आप directly trade कर रहे हैं, then you pay a very small share of the operations to the broker, like a company like AKD Trading. Again, it's the operation is simple, calling and making it happen, but what to buy and sell is your decision. Mutual fund के case में it's not. Their fund manager, whose 24/7 job is to look at stock market and other investments, does that work for you, and they keep a charge. But again, besides all the charges and all the fee they have, I highly suggest investing in mutual funds. Any
अच्छा जी, तो म्यूचुअल फंड्स जनरली थ्री टाइप्स के हाई लेवल पे होते हैं, हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड को जहन में अपने साथ रखना है, हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड है, देन देयर इज मीडियम रिस्क एंड रिवॉर्ड, देन देयर इज लो रिस्क एंड रिवॉर्ड। हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड में मेरे जो रफली, मैं बहुत ज्यादा हर वक्त नंबर्स नहीं पढ़ता, आई डोंट लाइक रीडिंग नंबर्स ऑल द टाइम, बट आई डू गेट ईमेल्स एवरी वीक एंड आई टेक brief look and then I yearly look at. So there is a official site which rates the mutual funds in Pakistan, and they share the returns over for last 10 years and 5 years and current year. And in my opinion, high risk and reward funds, their return is the best returns are around 14-15% in last few years at least. And these are generally equity funds. ये equity funds होते हैं जो इधर stock market में directly कर रहे हैं या companies में invest कर रहे हैं, companies की share holding ले रहे हैं और they are making money through that. मीडियम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो हैं उनके रिटर्न 8 to 10% बेस्ट मैंने नोट किए हैं। और ये तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो गए। थोड़ा सो अब्बास मेंशन्ड ए थिंग कॉल्ड द इंडेक्स फंड्स। वो क्या होते हैं? सो इंडेक्स फंड ऐसे ही होते हैं लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट फोकस्ड होती है स्टॉक मार्केट में। हर स्टॉक मार्केट का एक जो है वो इंडेक्स डिफाइन करती है स्टॉक मार्केट, जो एक वो ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, लार्ज कंपनीज होती हैं, स्टॉक मार्केट में सिग्निफिकेंट कंपनीज को रिप्रेजेंट करती हैं और फोकस। तो दिस इज माय सिंबल ऑफ स्टॉक मार्केट। तो इंडेक्स फंड इस पे फोकस करते हैं और वो उन जो इंडेक्स कंपनीज को बस को ट्रैक करते रहते हैं, उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं और उनके साथ ही जिंदा रहते हैं इंडेक्स फंड। बट यूएस मार्केट में आई सॉ खुरम सलीम एंड उमैर, तो उमैर साजिद, तो इंडेक्स फंड यूएस में दे आर हाईली हाईली रिकमेंडेड। And I always read and hear that they were always outperform any other mutual fund in US. So if US में, so further moving a bit, so आतिफ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म। मेरे ख्याल में ये आप यू हैव टू थिंक अबाउट एटलीस्ट 10 years। इससे शॉर्ट यू आर थिंकिंग, तो यू आर थिंकिंग रॉन्ग। शॉर्ट टर्म में आई थिंक देयर इज नो क्विक गेन। सिर्फ जो है किसी जो है डेंजरस बिजनेस का रिटर्न जो है वो शॉर्ट टर्म में हो सकता है। तो आई होप ऑल ऑफ अस गेट इन्वॉल्वड इन सेफ बिजनेसेस। तो whether or even if you're starting your own business, it's not going to produce returns right away. It takes years, or the same is the case for any investment. आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, तो सामने एक बड़ी जो क्रूड कैलकुलेशन है, अगेन आई शोड द, I've assumed somebody who's joining even a software company in Lahore on their first year and starting at the salary of 60,000, which is I think quite realistic these days. So the first column, so we can ignore the first column from left. The second column is years. The third column is monthly salary of that year, and then उसको मैंने सिंपली 12 से मल्टीप्लाई करके ईयरली सैलरी फोर्थ कॉलम फ्रॉम लेफ्ट पे निकाली है। फिफ्थ कॉलम इज योर ईयरली इन्वेस्टमेंट 20%। सो मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि जो आपको मंथली जेब में आता है सैलरी में आफ्टर टैक्सेस एंड एवरीथिंग, आप उसका 20% पहले ही साइड पे कर दें, बेस्ड ऑन माय फर्स्ट गोल्डन रूल कि इन्वेस्टमेंट आपकी फर्स्ट थॉट होनी चाहिए। तो 20% जो आप कमा रहे हैं आप साइड पे कर देंगे, ये मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देना है। और सिक्स्थ कॉलम जो है इट्स योर टोटल इन्वेस्टमेंट टू डेट। रिटर्न मैंने 10% एज्यूम किया है। अगर आप एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बना, मोस्ट मनी आप अपने मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड में डाल दें और आप उसका रिटर्न 10% ले रहे हैं, तो आई जस्ट केप्ट इट वेरी कंजर्वेटिव। आई मीन दे समटाइम रिटर्न मोर देन दैट एज वेल, समटाइम लो एज वेल, बट अगेन आई हैव जस्ट टेकन ए कंजर्वेटिव केस ऑफ 10%। और लास्ट कॉलम है कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कहाँ जा रही है। तो फॉर द नेक्स्ट 10 years ऑफ दिस पर्सन जिसने 60,000 पे कहीं जॉब शुरू की थी और 20% अपनी हर महीने की सैलरी का वो इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स में, मैंने उसके 10 years ले आउट कर दिया। तो केप्ट इट वेरी सिंपल। पहले 4-5 साल वो अराउंड 18% इंक्रीमेंट लेता रहा या लेती रही है, फिर अगले 5 साल 15% लेती रही है, और वो जो भी वो कमाता या कमाती रही है उसने 20% अपना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और 10% रिटर्न लेती रही है, और जो भी म्यूचुअल फंड्स पे अर्न किया है वो री इन्वेस्ट करती है। सो अगेन आप जो म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं आप इसलिए नहीं डाल रहे कि मैं साल के एंड पे निकाल लूंगा। यू कैन डू दैट बट आई एम सजेस्टिंग री इन्वेस्टिंग। तो ये मैंने 10 years का एक आपको किया है, और लुक एट द नंबर ओवर हियर जो कि आपका बॉटम में आ रहा है। सो यू आर क्रिएटिंग एन एसेट वर्थ मिलियंस आफ्टर फ्यू इयर्स।
by just investing 20% at a medium risk or low risk investment. And just looking further down, मैंने 3 columns, जो yearly salary है, it's the blue line, yearly investment 20% की orange line, और जो last column है आपके investment value, investment plus earning, वो gray line है. Look at the trend जो gray line ले रही है. Why? Because this is compounding now. Compounding किस लिए? आप हर साल जो earn कर रहे हैं वो reinvest कर रहे हैं, and that is earning again and again for next 10 years. So after 10 years, with this very reasonable investment, which I think most of us can do from day one, you are creating an asset worth millions. इसको आप 10 साल बाद real estate में use करें, fancy car लेने में use करें, it's up to you. But I think just keeping this money in the bank, ये जो सारा 10 साल का 10% compounded return था, वो lost हो जाना था, और आपकी जो ये gray line थी, ये blue line से नीचे कहीं आ रही होनी थी. और this is 10 years. अगर आप you are starting very early, this could be 15 years or 20 years. It could be your kid's college plan or something. And this is ये एक ऐसी सेविंग है जो कि कंपाउंड करके, सो ये हॉकी स्टिक ऊपर जाएगा. नेक्स्ट 10 years में या मैप करता तो ये ग्रे लाइन बिल्कुल ऐसे ऊपर चली जाती. सो यू आर क्रिएटिंग एन एसेट विच इज वेरी वेरी यूजफुल. बट अगेन यहाँ डिसिप्लिन चाहिए कि आपने एक्सपेंसेस से पहले सेविंग की है, और डिसिप्लिन चाहिए. किस तरह मैं जो सेविंग अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करता हूँ, मैं क्वार्टरली डाल देता हूँ. हर महीने मुझे मुश्किल लगता है, मैं क्वार्टरली डाल देता हूँ. बट ये हैबिट बनाना जरूरी है, एंड टू कीप इट गोइंग, इसके साथ कंसिस्टेंट रहना जरूरी है. अच्छा जी, फर्दर एक बेनिफिट जो आई थिंक लोग बिल्कुल ही रियलाइज नहीं करते, और करते भी हैं तो मे बी दे जस्ट डोंट टेक यूज ऑफ इट, वो है टैक्स डिडक्टेबल्स. हमारी मंथली सैलरी जो है उसमें बहुत सारे टैक्स डिडक्टेबल्स होते हैं. टैक्स डिडक्टेबल क्या होता है? टैक्स डिडक्टेबल इज द अमाउंट जो आपकी सैलरी में नॉन टैक्सेबल हो जाती है. टैक्स डिडक्टेबल्स क्या क्या चीजें हैं? म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अप टू 2 million a year टैक्स डिडक्टेबल है. अगर आप म्यूचुअल फंड्स में एक साल में अप टू 2 million रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी सैलरी में से 2 million रुपीज नॉन वो टैक्स फ्री हो जाएंगे. लेट्स जस्ट अज्यूम अगर आप साल के 1 million रुपीज कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, और आपने उसमें से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो आपकी सैलरी पे टैक्स जो साल का कटेगा इवेंचुअली वो 8 लाख रुपए कटेगा. आई थिंक इट्स ए ग्रेट बेनिफिट. इट्स वेरी इजी. ऑल यू डू इज कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी, अब तो हर एक की वेबसाइट है, ऑनलाइन ही टैक्स सर्टिफिकेट एक क्लिक पे डाउनलोड हो जाता है. वो आप गुलाम अब्बास को दे देते हैं इन द सेकंड लास्ट क्वार्टर, और वो आपके टैक्सेस को एडजस्ट कर देता है. सेकंड इसके चैरिटेबल डोनेशंस जो आपके हैं, जो भी आप चैरिटी ज़कात देते हैं, अगर वो आप रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स को दें, लाइक आप शौकत खानम को दें, लाइक आप अखुवत को दें, लाइक आप ईदी को दें. ईदी वालों से सर्टिफिकेट लेना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक दे डू अ लॉट ऑफ ईमेल्स एंड ऑल दैट, बट अल खिदमत, अखुवत, शौकत खानम, and many other hundreds of others do that. I know that because Confisca CSR, and we talk to these guys all the time. So up to 2 million or 30% of your annual salary a year जो आपके charitable donations है वो भी tax free हैं. तो अगर आपने I don't know 2 लाख रुपए टैक्स, आपने 2 लाख रुपए एक साल में चैरिटी दी है, so see if you want to give it to a good cause जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी है, वो आपको टैक्स सर्टिफिकेट दे देंगे, और वो सैलरी भी आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी. फिर you guys must be aware कि सारा एडवांस टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स, ये भी सारा जो है ये टैक्स डिडक्टेबल है. वेदर आपने कोई कार के परचेस पे दिया है, या आपने कोई रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन पे दिया है, या अपने मोबाइल सिम पे दिया है, या अपने बच्चे की स्कूल फी में दिया है, या अपने बिलों में दिया है, जहां भी एडवांस या विद होल्डिंग टैक्स का नाम आ रहा है, दैट्स ऑल टैक्स डिडक्टेबल. एंड फाइनली सारी म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अल मिजान और जेएस बैंक आपको अब रिटायरमेंट फंड्स भी देते हैं, सिमिलर टू प्रोविडेंट फंड्स. इसमें भी आप एडिशनली अगर आप 2 million a year इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी टैक्स डिडक्टेबल है. जूं योर सैलरी इंक्रीजेस, tax bracket also increases, and that puts additional pressure on you. And people say कि गवर्नमेंट ने क्या किया हमारे लिए. So here is a legal option जो गवर्नमेंट ने आपको दी हुई है to be financially smart and save taxes as well. में क्वेश्चन आ रहा होगा रिटायरमेंट फंड और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है. So retirement fund is never high risk. They always keep it low or medium risk, but इसका withdrawal after certain age होता है, after 60s में आप कर सकते हैं, and it's very similar to provident fund.
but retirement fund is again a great option. But you keep a money here जो कि आपने मे बी 60 ईयर्स के बाद अपनी 60 के एज के बाद लेनी है. म्यूचुअल फंड्स में बाय द वे आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं और जनरली देयर आर वेरी लो फी फॉर दैट. सो कीप इन माइंड कि खुदा न खास्ता यू आर इन एन इमरजेंसी, यू नीड कैश राइट अवे ऑन अ in one day you can get your money out from mutual funds even on a phone call. आपके बैंक पे ट्रांसफर हो जाती है, आप इसे ऑथराइज कर दें. I just have a question. Please जी, go अच्छा ahead. मैंने पूछना है, जिस तरह से आपने ये प्लान बताया है कि 10 years और 20 years की इन्वेस्टमेंट है, तो आई थिंक दिस कैन आल्सो रिलेट विद द इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल, क्योंकि वो डिफरेंट प्लान्स ऑफर कर रहे होते हैं. तो आई जस्ट वांट योर ओपिनियन दैट शुड वी गो फॉर दैट. मतलब वो कोई एजुकेशन प्लान ऑफर कर रहे होते हैं, कोई किड्स मैरिज प्लान ऑफर कर रहे होते हैं. तो आपकी क्या ओपिनियन है कि हम उस तरफ भी देखा जा सकता है? मतलब आर दे रिलायबल फॉर दिस थिंग? यार मैंने ऑनेस्टली कभी भी इंश्योरेंस प्लान्स में इन्वेस्ट नहीं किया. मेरी उसकी बड़ी ब्रोकन सी रीज़न है विदाउट अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड सर्च. मैंने इस्लामिक रीजंस पे कभी उन पे नहीं किया. एंड जस्ट एन FYI फॉर ऑल, आई ओनली इन्वेस्ट इन इस्लामिक फंड्स. मेरी उसकी भी लिमिटेड नॉलेज है, बट what gives me peace is कि उनके बोर्ड पे they have very smart people like मौलाना तकी उस्मानी, which I respect, तो I just go with their flow. बट मुझे लास्टली स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एक पर्सन जो था IGA का भी एक इस्लामिक इन्वेस्टमेंट प्लान दिखा रहा था. तो I don't know, investment insurance plan, but maybe somebody else in the call has done it and they should share their experience, but I've never used an क्योंकि वो insurance काफी plan. कॉल्स आती हैं और वो कहते हैं कि जी आपके मैं कमेंट कर देता हूँ. कमर जैसे से आप बता रहे हैं इस्लामिक का, तो जी कमर साहब. हाँ जी, इंश्योरेंस के केस में अगर तो आप इफ द पर्पस इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट, तो फिर तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो दे टेक रीजनेबल शेयर ऑफ मनी आउट ऑफ योर पॉकेट एंड वो अपने पास ले जाते हैं. और स्पेशली अगर आप देखेंगे उनका फर्स्ट ईयर में ये होता है अबाउट 50% वो आपका इन्वेस्ट करते हैं, 50% ले जाते हैं. सो वो सिर्फ और सिर्फ होता है आपकी लाइफ का रिस्क कवर करने के लिए. खुदा न खास्ता आप साल 2 साल में अगर आप कवरेज ले रहे हैं लाइफ की, तो देन दैट इज बेनिफिशियल. मतलब सिंपल अल्फाज में सिर्फ आप मरेंगे तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज ऑल अदर इन्वेस्टमेंट्स आर बेटर देन इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. So I think we have a few minutes left. तो ये मैंने लास्ट जो आपको एक एक्सेल शीट दिखाई थी, मैंने सेम उठा ली है, लेकिन उसमें मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट का जो बॉक्स है उसको हाईलाइट किया है और मैंने उसके ऊपर टैक्स सेविंग्स को बहुत क्रूडली कैलकुलेट किया है. एंड टैक्स सेविंग इससे ज्यादा होगी, लेकिन इसके ऊपर अगर आप 10% भी टैक्स सेव कर लें ओवर 10 years, विच इज ओवर 2 million rupees, दिस इज अ प्रीटी गुड मनी. 20 लाख रुपए वो हैं जो कि आपने टैक्स में दे देने थे बट आपके सेव हो गए हैं. तो आपने actual saving is over 8 million rupees in 10 years. I think not many people who will not invest will save 8 or 10 million rupees. 80 लाख 1 करोड़ 10 सालों में सेव करेंगे. I don't think many people will do, but somebody who started early and started investment will definitely do that. So keep in mind that your investment is actually and your saving is much more than the 6 million 3 because of the tax benefits. And this is all again जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है. अगेन कंपनी स्टॉक्स को मैंने भी जो है रिसेंटली लर्न किया और अंडरस्टैंड किया, एंड आई विल शेयर माय अंडरस्टैंडिंग, बट कमर साहब इज हियर एंड ही ऑब्वियसली नोज एवरीथिंग इनसाइड आउट. सो कंपनी स्टॉक इज एन एसेट which gets offered to you on a couple of instances, whether you're joining a company or getting promoted or staying with them for a long time. So what happens is you get options to buy stock. So option in itself कोई asset नहीं है. Option जो है it's an option कि आप stock buy कर लें at a discounted price. Stock की प्राइस कैसे निकलती है, उसके दो ही तरीके हैं. जो कंपनी स्टॉक मार्केट में जा चुकी है उसकी प्राइस तो स्टॉक मार्केट ही डिसाइड करी है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड मेनी अदर थिंग, ऑन मुल्की हालात, उस इंडस्ट्री के हालात, कंपनी के हालात, इस तरह के फैक्टर्स. दूसरी जो कंपनी स्टॉक मार्केट में नहीं है और जो लिमिटेड कंपनी है उसके भी स्टॉक्स होते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो बुक प्राइस पे निकलती है. सो व्हाट नीड टू करेक्ट हियर, एक्चुअली बुक वैल्यू पे नहीं निकलता, मार्केट वैल्यू पे निकलता है.
तो मार्केट वैल्यू हमेशा जो है डिफरेंट होती है. इवन फॉर अ लिस्टेड कंपनी, इफ यू सी द बुक वैल्यू in the audited financials, that is going to be significantly different. ठीक है. और जो उनकी मतलब मार्केट में वो शेयर ट्रेड हो रहा होता है वो डिफरेंट होता है. तो वो बेसिकली अब जब तक आपकी कंपनी लिस्ट नहीं होती तो तब तक आप लिस्टेड कंपनी को थोड़ा सा देखते हैं, जो आपकी पीयर कंपनीज हैं, जो कंपेटिटर्स हैं, तो उन्हीं से मतलब थोड़ी सी गाइडलाइन लेते हैं और उसके बाद SECP से अप्रूव करा लेते हैं एक फॉर्म. इवेंट जो हुआ उसमें आपने कंपनी, आपने कन्फेस कोई कंपनी ज्वाइन की या प्रमोट हुए या लॉन्ग स्टे किए तो आपको ऑप्शंस मिली. अगेन ऑप्शंस, ये भी एसेट नहीं बना. सेकंड इवेंट ये है कि आपने वो शेयर्स, ऑप्शंस जो हैं उनको कन्वर्ट कर दिया शेयर में बाय पेइंग दी डिस्काउंटेड प्राइस, जिसको स्टॉक प्राइस भी कहते हैं. तो जैसे कमर साहब कह रहे थे कि किसी एक फार्मूला से कंपनी का किसी एक अप्रूव्ड और स्टैंडर्ड फार्मूला से, नॉट एन इनसेन और इमेजिनरी बट एक अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कमीशन के अप्रूव्ड फार्मूला से शेयर की प्राइस डिटरमिन हुई. उसके 50% पे आपने वो शेयर खरीद लिए. अब आपके पास एसेट आ चुका हुआ है. उस एसेट पे आपको क्वार्टरली कंपनीज, स्पेशली प्रॉफिटेबल कंपनीज जो है वो डिविडेंड भी देती हैं. कन्फेस भी 2 ईयर से दे रहा है. और एक लिक्विडेशन इवेंट पे आप उसको फिर एबिलिटी, यू गेट द एबिलिटी कि आप उसे पब्लिक मार्केट में हाई प्राइस पे सेल कर सकें. लिक्विडेशन इवेंट क्या होते हैं? इधर कंपनी आईपीओ कर रही है, आईपीओ इसके वो अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई है, उसके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ उसके शेयर स्टॉक मार्केट में चले गए हैं और अब आप सेलिंग और परचेजिंग कर सकते हैं उसकी. ये उस कंपनी को किसी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने भी खरीद लिया एंड दे जनरली पे अ हायर नंबर एज वेल. तो लिक्विडेशन इवेंट जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए टू गेट वेरी गुड रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, which is the time they've spent with the company and the money they've spent on buying the shares, उसको convert करने का है. और other event between the option and the buying, which is the vesting, शायद वो एक थोड़ा सा अगर आप कर दें. और एक दूसरा क्वेश्चन शायद वो कमर साहब बेहतर बता सकेंगे. Until the company has gone public or the company is sold, that's in that period, जो आपकी sort of जो ये bought shares होते हैं, that is mostly on paper value, right? उसकी कोई मतलब liquidation is not an option in that period of time, or is there? बंदा बड़ी कंपनी स्टार्ट करे एंड रेहान या मैं स्टार्ट करें, देखें यार ऐसा को थोड़ी चीजें आती हैं, इसको ना कंपनी में हायर कर लेते हैं. और मैं फिर इनसे कहूंगा यार सैलरी तो बड़ी अच्छी है बट आई वांट टू क्रिएट एसेट एज वेल, टू गिव मी स्टॉक्स. तो ये कहेंगे कि यार ठीक है आप आके हमें ज्वाइन कर लें, लेकिन स्टॉक आपके एक वेस्टिंग पीरियड से गुजरेंगे, विच मीन्स कि आप हमारे पास कुछ अर्सा स्टे करें. तो पहले दिन ये मुझे ऑप्शंस नहीं दे देंगे, इस सारी आप ऑप्शन लेके आप पहले दिन सारे स्टॉक मेरे से खरीद लें और फिर आप अगले दिन रिजाइन करते हैं. बट दे विल टेल मी कि यार आप हमारे पास 4 साल रहें, हमने आपको लेट्स से 10,000 शेयर दिए, स्टॉक ऑप्शंस दिए हैं, बट ये हर साल 25% अवेलेबल टू बाय होती रहेंगी. इसका सिर्फ एक मतलब होगा कि मैं इनके साथ स्टे करूं, जो एक्सपेक्टेड टाइम एटलीस्ट 4 साल का मैं इनके साथ लगाऊं, कंपनी में हार्ड वर्क करूं, अपनी वैल्यू ऐड करूं एंड अर्न दोज ऑप्शंस. तो इट्स नॉट जस्ट मनी, राइट? दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डिस्काउंटेड प्राइस जो मैं इनको पे कर रहा हूं. दैट्स पीनट्स फॉर देम, राइट? अगर ये कंपनी चला रहे हैं जो कि विच इज वेरी सक्सेसफुल एंड लार्ज और हैज अ लॉट ऑफ लाइक पोटेंशियल, तो मैं इनको शेयर प्राइस जो डिस्काउंटेड कर रहा हूं वो इनके किसी काम की नहीं है. They want smart people to become shareholders, but spend time with the company as well and help the company to succeed. तो ये vesting period होता है. Second है liquidation event, अगर IPO या company sold नहीं हो रही. तो मेरी इस पे कमर से भी टेक दे देते हैं. मेरी उस पे जो learning है वो यही है कि without IPO या company being sold to a private investor liquidation नहीं होती. Liquidation और company का buyback option of shares जो हैं वो चलती हैं टॉप डाउन. टॉप डाउन मींस के जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, ही गेट्स द फर्स्ट ऑप्शन टू सेल बैक द शेयर्स एंड देन इट गोज डाउन. तो जनरली आई मीन एन इंजीनियर who is maybe a 50th or 100th employee of the company will be down the chain. तो इवन कंपनी बायबैक ऑप्शन में भी उसकी बारी आते हुए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी लोग बैठे हैं जो कि पहले दिन से कंपनी में हैं, बड़े शेयर होल्डर हैं, वो भी लिक्विडेशन करना चाहते हैं. टू डू दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स आई मेड. सो इन्वेस्टिंग इन नॉन रियल स्टेट, yes, this is a play on words.
नॉन रियल इसलिए कि आई स्पेसिफिकली ईडन ग्रुप लाहौर में पाकिस्तान में 15 years ago was a very renowned group with a lot of projects going on. So I joined their plan जहाँ पे एक imaginary land पे उन्होंने ईडन का एक टाउन बनाना था और उसका उन्होंने 5 या 10 years का कोई इंस्टॉलमेंट प्लान दिया कि आप हर महीने वेरी वेरी चीप 10-20 हज़ार रुपए जो हैं वो हमें देते रहें, तो 5 years के बाद आपको 10 मरले का पता नहीं को प्लॉट मिलेगा। एंड कहाँ पे था उस जगह, किसी के एडवाइस में उस जगह पे गया तो वहाँ पे भी गांव था और बट बिकॉज इट वाज ईडन तो आई थॉट इट्स वर्थ। तो 15 years ago आई हैड जस्ट स्टार्टेड माय करियर, तो अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ माय सैलरी मैं इनको देता रहा और जाकर देता रहा और बड़ा जो है रिलीजियसली 5 साल देता रहा और 5 साल के बाद ये ईडन ग्रुप का ओनर पाकिस्तान से भाग गए। रियल स्टेट में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो जमीन पे आपको प्लॉट या रियल स्टेट नहीं नजर आ रही, जिसके इर्द गिर्द रोड्स नहीं है, उसको नंबर असाइंड नहीं है और उसकी बाउंड्रीज असाइंड नहीं है, डोंट इन्वेस्ट इन इट। Second mistake that I see a lot of friends is being a sleep investor or a silent investor in a friend's business. तो कोई दोस्त जो है बर्गर का बिजनेस शुरू कर रहा है या फलानी चीज कर रहा है और वो आपसे इन्वेस्टमेंट ले लेता है एंड यू थिंक ओ नाउ आई हैव डन ग्रेट और यू डोंट पुट एनी टाइम इनटू इट, यू आर स्मॉल इन्वेस्टर, चंद लाख रुपए आपने से दे दिए और यू थिंक इट विल गेट यू रिटर्न। I have not seen a single case जहाँ पे being a sleep investor, which means कि आपने उसके कारोबार को चलाने में कोई एफर्ट नहीं की, कोई वैल्यू ऐड नहीं की, सिवाय चंद लाख उसको दे दिए हैं और आपको उसका कोई रिटर्न मिल गया। The investment companies never see their money again. Venture capitalists and all that, they all look for that 1% or 2% that will make money. अच्छा, एक चीज जो कोरोना में मैंने फील की एंड आई एम श्योर कि इट्स नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ यू के लिंक्डइन पे, सो मार्च में कोरोना इम्पैक्ट हिट हार्ड एंड बाय जून लोग लिंक्डइन के ऊपर डेस्परेट पोस्ट कर रहे थे कि आई हैव लॉस्ट माय जॉब, आई हैव किड्स, आई डोंट नो हाउ टू रन माय किचन, फाइंड मी अ जॉब। एंड आई ऑलवेज थिंक अबाउट कि व्हाई वुड यू नॉट हैव 6 months ऑफ योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस सेव्ड इन यू। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ, यू कैन ऑलवेज कैश दैट आउट। अगर आपकी इतनी बुरी हालत आ गई कि यू आर डेस्परेटली लुकिंग अराउंड एंड यू आर डेस्परेट, सो आई हैव रिसीव्ड मैसेजेस जिस पे लोग कह रहे हैं कि आई एम डेस्परेट फॉर जॉब, हेल्प मी एंड ऑल दैट। एंड आई ऑलवेज थिंक कि आपने 10 साल जॉब किया अगर और आपने 6 महीने का भी हाउस होल्ड एक्सपेंस सेव नहीं किया हुआ तो आपने यू वर योर बिगेस्ट एनिमी देन, कि विद इन फ्यू मंथ्स आप रोड पे आने की सिचुएशन पे आ गए। तो ऑलवेज सेव फॉर any impact like corona or anything. These things happen now. We have lived through it. We have seen many companies shut down, many people getting laid off or salary cut downs. And again, if you have money in mutual funds, you can always withdraw it in such hours. एक और चीज तो कमर सिपरा से मेरी गपशप लग रही थी हनी शेड के, एक और गलती जो लोग करते हैं वो अपने प्रोविडेंट फंड को बहुत अर्ली विड्रॉ करने की करते हैं। मोटरसाइकिल लेनी है या ये लेना है या भाई की शादी हो रही है तो उस पर बड़ा मेहंदी का फंक्शन करना है। एंड आई थिंक दिस इज अ बिट ऑफ इंसैनिटी। योर प्रोविडेंट फंड इज योर रिटायरमेंट फंड। व्हेन यू आर 60 years old or 55 years old and you are not working anymore, how are you gonna run your expense? क्या आप अपने चिल्ड्रन पे फुली डिपेंडेंट हो जाएंगे? क्या आप हैंड टू माउथ रहना शुरू कर देंगे? व्हाट विल यू डू अगर आपके पास कोई रिटायरमेंट फंड नहीं है? कोई रिटायरमेंट फंड है, यू कैन डू समथिंग विद इट। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज कर सकते हैं, उसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे घर अपना बना के वो रेंटल से जान छुड़ा सकते हैं। तो प्रोविडेंट फंड को विड्रॉ करना बड़ी एक लास्ट थॉट होनी चाहिए आपकी किसी ऐसी चीज के लिए जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो या एंड अगेन फाइनली नॉट फाइलिंग टैक्सेस। अगर आप टैक्स फाइलिंग कर रहे देन यू आर जस्ट नॉट कैशिंग इन अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कैपिटल गेन टैक्स जो डबल हो जाता है नॉन फाइलिंग पे। तो अगर आप कोई आजकल तो गवर्नमेंट ने हर चीज पे इतने इंसेंटिव दे दिए हैं, आप मोटरसाइकिल ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें टैक्स ब्रैकेट्स ही फर्क है फॉर अ फाइलर एंड नॉन फाइलर। सो व्हाई वुड यू नॉट फाइल टैक्सेस? आजकल तो बड़ी चीप पैसों में टैक्स फाइल हो जाता है और फॉर अ सैलरीड पर्सन आपकी हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। गुलाम अब्बास आपको ईयरली टैक्स स्टेटमेंट दे रहा है। Most of us don't have any complex income options. It's just a salary. We don't have any complex assets in journal. So why won't you not file taxes? So please file taxes. Finally, the best investment advice. सारा कुछ पीछे भूल जाएं अगर आप ये दो चीजें भी कर रहे हैं, I will be extremely happy. Number one is investment in yourself. Your biggest asset is yourself. आप जितना लर्निंग के ऊपर
invest अपने ऊपर कर रहे हैं, whether it's reading books free or whatever, whether you are doing trainings, whether you are making yourself valuable, that is the biggest investment you will do. No mutual funds, nothing will ever beat that. जो knowledge आपके पास आ रहा है, that is your biggest asset. It will convert into much bigger returns than anything you will invest in. Or finally, donation, I think, has the biggest return as well. And not just money, your time as well. We have infinite people around us who need money or our help in one way or the other. And the biggest gain I have seen, and like numerous people confirm to me that जो हम ज़कात में दे रहे हैं या जो donation कर रहे हैं, it comes back with a lot of returns. और I'm not saying कि you should do donations and ज़कात कि उसका return आएगा, but Allah Ta'ala बरकत डालते हैं, and I see that as a duty and a great investment without any doubt, and I am speaking for experience of 10 plus. If you want to learn or read a bit more, so 3 books I like. First is What I Did Not Learn at IIT. IIT is Indian Institute of Technology. It's a multi-campus institute in India. Some of them are ranked even higher than MIT of US. So Rajiv Agarwal was a IT executive and CEO of a very large Indian company, and he wrote this book. It's a small book. It's available on Amazon, or maybe Readings in Pakistan can get you this book. It talks about a lot of things, but it has especially chapters on investment in mutual funds and all that. And this book is for people who are transitioning from campus to workplace, right? जो आज के मेरी talk का भी key audience है. So it's a small book, very, very good book. Please do see if you want to buy the small book and read it. Second book is Tony Robbins is a very famous motivational speaker. Or this book, Money, Master the Game, is extremely thick. So fair warning, it's a 400 pages book. I did not read the 400 pages. I just picked up the chapters I like. So for our LLC colleagues, इसमें specific उसने Vanguard के funds बताए हुए हैं जो who have performed very well over time. So you should definitely read those chapters and start investing in Vanguard's index tracker funds. And for people in Pakistan, it's a good book and easily available as well. Final book is what Umair, Sajid, and me used to discuss a lot in the day back is Rich Dad, Poor Dad. Talks about 2 people, 2 dads, 1 dad just never had any investment mind and struggled, has studied from Harvard and all that and struggled. The other guy was not college educated, but investment savvy and lived a much prosperous life. That's it, folks. Any questions? Most welcome.